Hello students, to continue with the federalism chapter, today I will be discussing about how is federalism practiced in India. Let's quickly recapitulate that we have discussed in the previous videos, like what is federalism. Federalism is such a government in which the government we set up governments at different levels, right? Now then we have discussed about the key features of the federalism, how federalism, what are the basic features which makes a country a federal country, like having two or more than two levels of government. Then each level of government has its area of jurisdiction. They enjoy autonomous power without interfering in each other's sphere. They work together. All these features we have discussed. Now today I will discuss how federalism practiced in India. कहना आसान है कि इंडिया एक फेडरल नेशन है, लेकिन रियलिटी में हमने जब देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, देवर थ्री लिस्ट वर प्रिपेयर्ड: यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, एंड लेटर ऑन रेजिडुअल लिस्ट वाज आल्सो एडेड. बट सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशन डज नॉट मेक अ कंट्री सक्सेसफुल, अ कंट्री फेडरल कंट्री. उसके लिए ज़रूरी है जो डेमोक्रेसी है, हमारी जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, जो उसकी विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, दैट इज़ ऑल पीपल शुड लिव पीसफुली विद इन अ सोसाइटी. रिस्पेक्ट शुड बी गिवन टू एवरी कम्युनिटी पीपल. देन टू प्रमोट सेक्युलरिज्म so that people be secure in the society. All these features, all these ideas together work to for the success of the federalism in India, because India is a country where people from different communities are living together, so it becomes a quite difficult task to make them live peacefully within a society, within a nation, right? So in practicality, how federalism is practiced in India, let's discuss. So we are discussing three important things here. One is linguistic states, second is the language policy that we follow, and then we'll talk about the center and the state relations. Now talking about the linguistic states, आपको पता है when Britishers left India, there were more than 500 states present here. 500 states means princely states. छोटे छोटे राजा, रजवाड़े, नवाब, ये सब रूल कर रहे थे. उनकी अपनी एक किंगडम्स थे, अपनी एम्पायर्स थी. नॉट एम्पायर बट हाँ, छोटे बड़ी रियासतें थीं. तो जब अंग्रेज़ भारत छोड़कर गए, तो एक बड़ा टास्क सरकार के सामने था कि इतनी सारी रियासतों को कैसे मॉडर्न स्टेट्स में कन्वर्ट किया जाए. सो दे after they made this plan that will be creating states in India on the basis of language. तो जो prominent languages को लिस्ट आउट किया गया और उनके बेसिस पे मॉडर्न स्टेट्स की बाउंड्रीज बनाई गई. तभी हम कहते हैं कि आर स्टेट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. दैट इज़ वाई वी कॉल इट लिंग्विस्टिक स्टेट्स. Right, so this is how the linguistic states are formed, giving importance to maximum people speaking the prime language in one particular region, right? किस एरिया में, किस रीजन में कितने लोग, कितनी जनसंख्या जो है वो कौन सी प्रोमिनेंट लैंग्वेज बोलती है, उसके आधार पर लैंग्वेज स्टेट्स क्रिएट किए गए. इसलिए हम भारतीय स्टेट्स को लिंग्विस्टिक स्टेट्स कहते हैं. इससे क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंटली करने में सहायता मिली. रीजन बीइंग पीपल विद द सेम लैंग्वेज अंडरस्टैंड्स and understands the official orders and everything if the things are done on the basis of their language. So administration can be run properly, right? So linguistic states are created giving importance to prime languages, right? Then the language policy, the kind of language policy अभी हमने देखा कि linguistic state we give importance to the languages. तो इंडिया में besides हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेजेस आर लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्हें हम शेड्यूल लैंग्वेजेस बोलते हैं. ऐसा नहीं है कि सिर्फ 22 लैंग्वेज इंडिया में बोली जाती, कई लैंग्वेजेस बोली जाती है, लेकिन जिन लैंग्वेजेस को सबसे ज़्यादा जनता बोलती है, ऐसी 22 लैंग्वेजेस को इंक्लूडिंग हिंदी, ऐसी 22 लैंग्वेजेस को लिस्ट आउट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिन्हें हम शेड्यूल लैंग्वेजेस कहते हैं. और ये भी डिसाइड किया गया
कि हिंदी विल बी एन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो भी सरकारी काम होगा वो हिंदी में किया जाएगा, हिंदी शुड बी प्रमोटेड, बट दैट डजंट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज हिंदी ऑन एवरी स्टेट्स। ये आज़ादी दी गई, नो डाउट हिंदी को प्रमोट करना है देश में, इसलिए ये सरकार ने ये स्टेट्स को निर्देश दिया है कि आप हिंदी में अपने ऑफिशियल काम किए, सरकारी काम जो है हिंदी में किए जाएंगे। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि जिन स्टेट्स में हिंदी नहीं बोली जाती या कम बोली जाती है वो भी मजबूरी में हिंदी में काम करेंगे। इसका ये मतलब है कि हिंदी इज़ एन ऑफिशियल लैंग्वेज, states can perform their state task, official work in Hindi. Apart from Hindi, they can use one prominent language which is speaking, which people speak in that particular state, and side by side they have given an option of English also. यानी एक स्टेट के पास, एक इंडियन स्टेट के पास हिंदी के अलावा इंग्लिश और कोई भी स्टेट लैंग्वेज जो प्रोमिनेंटली उस स्टेट में बोली जाती है उसका ऑप्शन है, वो अपने स्टेट के ऑफिशियल काम इन लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। अगेन नॉट इम्पोजिंग और नॉट फेवरिंग एनी वन पर्टिकुलर लैंग्वेज. So this is the language policy that we follow in India, right? Then this also has made such policy give importance to every language, right? Then the third thing is center and state relations. यहाँ पे हमने लैंग्वेज को बहुत डिटेल में डिस्कस किया. रीज़न बीइंग वी गिव इम्पोर्टेंस टू लैंग्वेज बिकॉज लैंग्वेज इज वर्क्स एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड. इससे देश की जो डाइवर्सिटी है वो भी मेंटेन होती है और इससे हम देश को एक सूत्र में बांधते भी हैं, इसलिए वी गिव इम्पोर्टेंस टू लैंग्वेजेस. देन सेंटर, थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग इज सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस कैसे हैं इंडिया में, क्योंकि हमने देखा कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी वर्क कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स भी वर्क कर रही है और लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स भी वर्क कर रही है, लेकिन इनके बीच में किस तरह के रिलेशंस हैं. सबसे पहले आवर गवर्नमेंट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स. कुछ पावर्स सेंटर के पास हैं और कुछ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स के पास है, लेकिन हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसमें सेंटर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, सो दैट अ स्ट्रॉन्ग सेंटर कैन होल्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एफिशिएंटली. अगर सेंटर स्ट्रॉन्ग है तो वो अलग अलग स्टेट्स की और लोकल जो सरकारें हैं उनको होल्ड करने में सक्षम होगा. ऐसी हमारी विचारधारा है. तो इससे हम पावर्स तो दे रहे हैं स्टेट्स को और लोकल गवर्नमेंट्स को, पर कहीं ना कहीं बाय कीपिंग अ चेक ऑन देम. ठीक है, तो सेंटर जो है वो स्टेट्स गवर्नमेंट की वर्किंग पे उनको चेक करता रहता है. ठीक है, और समय समय पे उन्हें निर्देश देता रहता है, इंस्ट्रक्शंस आर गिवन. एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कैसे हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चेक ही रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट, बल्कि समय आने पे ग्रांट इन एड सिस्टम भी फॉलो किया जाता है इंडिया में, जिसमें कि अगर कभी भी किसी भी स्टेट को ज़रूरत है पैसे की, फाइनेंशियल सपोर्ट की, कोई आपदा आ गई, कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, किसी भी तरह की परेशानी, तो स्टेट रिलीजेस फंड्स. ठीक है, और फंड्स रिलीज करने के साथ साथ इट्स नॉट ओनली दैट विल वेट फॉर द नेचुरल डिज़ास्टर टू अकर, बट ऐसा है कि कभी भी जो भी स्टेट हमें सरकार को लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि जहाँ पे डेवलपमेंट उतनी नहीं हो पा रही है, प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रहा है वो स्टेट, तो वहाँ पर भी सेंटर जो है वो स्टेट को सपोर्ट करता है फाइनेंशियली. राइट, सो दिस इज हाउ द सेंटर एंड स्टेट्स वर्क टुगेदर. जो हमारा लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव टीम है ये एक साथ मिलकर काम को करती है. 1990s में इंडिया में एक और दौर देखा गया व्हेन नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इंक्रीज्ड इन इंडिया एंड दिस लेड टू अ ट्रेंड. सिंस जितने ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज होंगी, जनता के पास उतनी चॉइस होगी किसे इलेक्ट करना है, किस पार्टी को चूज़ करना है. ऐसे में इंडियन पॉलिटिक्स में कोलिएशन गवर्नमेंट देखने को मिली. यहाँ से इमर्जेंस हुआ कोलिएशन गवर्नमेंट का भारत में. कैसे, अगर कोई एक सेंट्रल पार्टी है, नेशनल पार्टी है, वो अपने वोटर्स बढ़ाने के लिए या वो ज़्यादा सीट्स पाने के लिए अलग अलग स्टेट्स में रीजनल पार्टीज़ के साथ मिलकर
इलेक्शंस करती हैं। ऐसे में जब एक पार्टी, एक बड़ी पार्टी और छोटी पार्टीज या रीजनल पार्टीज को अपने साथ लेकर ग्रुप फॉर्म करती है और वो जीत जाते हैं इलेक्शन में, तो वो सरकार बनाते हैं। इस तरह के जो अलाइंसेस होते हैं, इस तरह के जो ग्रुप फॉर्म होते हैं, उसको कोलिएशन गवर्नमेंट कहते हैं जब वो गवर्नमेंट बनाते हैं। व्हेन इसका एक और मतलब ये है कि व्हेन नो सिंगल पार्टी गेट्स majority votes in election, then the a leading party with many other small parties or regional parties, they form a group and together they contest election and forms the government. Such a government is called coalition government. इस पे क्वेश्चन आता है, what is coalition government? सो मिलजुल कर किस तरह से सरकारें काम करती हैं, किस तरह से पॉलिटिकल पार्टी काम करती है, जो कि हमारे देश का डेमोक्रेटिक सेटअप को कहीं ना कहीं बेहतर बनाती हैं. So this is how by we see divisions in every point. We see divisions here in political parties. Also we see division of power among the center and state. Also we see division on the basis of language also. We see division done to create states on the basis of again religion, language. ये सारे divisions होने के बावजूद these divisions had led to a unity in the nation and better running of administration, right? So all these divisions with done for the smooth functioning of the governments at different levels, which ensures the working of federal government in a better way in India. So this is how federalism is practiced in India, right? So please go through these points. थोड़ा सा मुश्किल होते हैं ये points समझने, लेकिन अगर आप बार बार सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे चीज़ों को तो आप बेहतर समझ पाएंगे. फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग